جو آج میرا ٹاپک ہے وہ ہے راہ اور حق اور زندگی. 3 باتوں پر آج ہم غور کریں گے، راہ اور حق اور زندگی. تو یہ میرے یسوع مسیح کے منہ مبارک سے یہ الفاظ جو ہے وہ نکلے ہیں. آئیے کلام مقدس میں سے مقدس یوحنا کی انجیل ہم دیکھیں گے، اس کا 14واں باب اور اس کی 6 آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے الفاظ نکلے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں. یہ یسوع مسیح کے منہ مبارک سے الفاظ نکلے. یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اور یہ جو میں ہوں، یہ کوئی سینا کے پہاڑ پر یہوہ خدا کے الفاظ ہیں. جب موسیٰ نبی سے یہ کلام ہوا تو اس وقت خدا نے کہا تھا میں جو ہوں سو ہوں. یہ الفاظ کوئی سینا کے پہاڑ پر دہرائے گئے. اور یہ الفاظ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے جب وہ اس روئے زمین پر تھے، یہ الفاظ کہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ راہ بھی ہے، حق بھی ہے اور زندگی بھی ہے. آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے معبود ہیں، بے شمار ایسی ہستیاں، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راہ حق اور زندگی میں. یہ میرے خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے. اور یہاں پر پہلی بات پر ہم غور کریں گے. 3 پوائنٹ اس کے اندر ہیں. اور پہلی جو بات وہ ہے راہ. راہ، یسوع مسیح نے پہلا جو لفظ استعمال کیا وہ ہے راہ. اور راہ کا مطلب ہے راستہ، میل جول، ذریعہ، وسیلہ. یہ خدا یسوع مسیح کے منہ مبارک سے یہ الفاظ جو ہے وہ نکلے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے کہا I am the way، میں راستہ ہوں. اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں خدا کے پاس پہنچنے کے لیے وہ حقیقی اور سچا راستہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط راہ بتا دے نا تو انسان جو ہے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے. راستہ جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. آج اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں، آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو اگر آپ کو غلط گائیڈ کر دے تو کیا ہوگا؟ آپ گھومتے رہتے ہیں اور بڑی مشکلات جو ہے وہ آتی ہیں، کیونکہ راستہ جو ہے ہمیں غلط بتا دیا گیا ہے. تو اگر کبھی آپ کسی سے راستہ پوچھیں، اگر وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر دے تو آپ بڑے پرفیکٹ ٹائم پر اپنی صحیح منزل پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ راستہ بتانے والا جو تھا اس نے آپ کو صحیح گائیڈ کیا ہے اور آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، آپ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے ہیں، کیونکہ راستہ جو ہے آپ کو صحیح مل گیا ہے. تو بات کا جب راستہ صحیح نہ ملتا انسان بھٹکتا رہتا ہے، مشکلات آتی ہیں، کٹر حالات آتے ہیں، کیونکہ راستہ جو ہے ہمیں نہیں مل رہا. اور آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے بے شمار لوگ جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ صحیح پٹری پر نہیں ہیں، صحیح راستے پر نہیں ہیں. ان کو صحیح راستہ بتایا نہیں جا رہا، ان کو ٹھیک راہ جو ہے وہ دکھائی نہیں جا رہی. یہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. تو راہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے ہماری رسائی جو ہے آسمانی باپ تک جو ہے وہ ہوتی ہے. آئیے دوسرا پترس کا خط نکالیے میرے ساتھ. یہاں پر ہم راہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہیں. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ دوسرا پترس کا خط میرے ساتھ نکالیے اور اس کا 2 باب اور ہم اس کی جو ہے 15 آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے ہیں اور باور کے بیٹے بلعام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے نہ راستے کی مزدوری
को अजीज जानो। आमीन। यहाँ पर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, दूसरा पतरस का खत, दूसरा बाब, उसकी 15 आयत में यहाँ पर लिखा है, वो सीधी राह छोड़कर क्या हो गए हैं? गुमराह हो गए हैं। सीधी राह छोड़कर वो गुमराह हो गए हैं और बौर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना। बलाम नबी का वाकया हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है, जिसको बुलाया गया था कि वो इसराइल पर लानत करे, लेकिन जिसको खुदा बरकत देता है ना, उसके ऊपर कोई लानत नहीं कर सकता। और ये खुदा की खास ब्लेसिंग खुदा के लोगों के लिए होती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह फरमा रहे कि राह मैं हूं। आप बेशुमार रास्ते हैं दुनिया में, हम देखते बेशुमार मज़ाहब है, बेशुमार लोग अपने अपने देवता को, अपने अपने माबूद को मानते हैं। हर एक अपने रास्ते पर चल रहा है। हर इंसान का रास्ता अलग है, वो अपने ही अलग अलग रास्तों से हर इंसान जा रहा है। लेकिन हमारे लिए जो रास्ता यीशु मसीह ने जो चुना है वो ठीक रास्ता है, जिसके वसीला से जिस पर हम चलते हुए हमारी आसमान की बादशाह के दरवाजे हमारे लिए जो है खुल जाते हैं। उस ठीक रास्ते पर जब हम जा रहे हैं तो किताबे हयात में हमारे नाम जो है वो मंदरज होंगे। अगर हम ठीक राह पर चल रहे हैं तो बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, और अगर हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं तो फिर रास्ते में मुश्किलात, रुकावटें नहीं आएंगी, क्योंकि हम जो है परफेक्ट अपनी मंजिल पर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं। आज भी बहुत सारे लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं। आज भी सच्चाई पर लोग चलना नहीं चाहते। यीशु मसीह जब कलाम लेकर आए ना, तो बहुत सारे फकीह फरीसी उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि ज़हन बंद थे, कलाम को वो समझ नहीं सकते थे। यीशु मसीह जो थे उनको हकीकी कलाम उनको पेश कर रहे थे, और वो उन तमसीलों को, उन कलाम को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए तो फिर यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि वो उन्होंने सीधी राह को अख्तियार नहीं किया कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आपको ठीक रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आपको ठीक रास्ता बताने वाला मिल गया है तो आपकी मंजिल करीब है। आप जो है कामयाबी के नजदीक हैं, आप आसमान की बादशाही के करीब पहुंच चुके हैं। आपकी रसाई जो है आसमानी बाप के पास जो है होने वाली है, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है, जिसने हमें ये रास्ता जो है वो दिखाया है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह मैं हूं, आई एम द वे, मैं रास्ता हूं। अगर इसके ऊपर तुम चलोगे तो फिर आसमान की बादशाह में तुम पहुंच जाओगे। और फिर दूसरी बात खुदा के कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने फरमाई, राह के बाद हक में हक की बात की गई है। और यहाँ पर हक का जो मतलब है वो है सच्ची बात, सही बात, दुरुस्त बात, हकीकत पर मबनी, जिसको हम हक कहते हैं। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम दुनियावी मानों में देखें तो हक जो है, बहुत सारे लोग जिनका हक शायद छीन लिया जाता है, जिनको हक मिलता नहीं है। यहाँ पर हक जो है हमें दिलाने के लिए हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे पास है, हमारे दरमियान में है। तो यीशु मसीह ने कहा कि हक मैं हूं। और कुछ लोग अपने हक के लिए जो वो लड़ते हैं, वो कहते हैं हमारा हक है, हमें हमारा हक जो है वो मिलना चाहिए। अब यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के मुंह मुबारक से अल्फाज निकले हैं कि राह भी मैं हूं और हक भी मैं हूं। तो हक के लिए जो है हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 17वां बाब है और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझे खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। अब यहाँ पर मुकद्दस यूहन्ना की इंजील जो 17वां बाब है, यहाँ पर यीशु मसीह की हमें दुआ नजर आती है, और ये बड़ी लंबी दुआ है, तवील दुआ है। और जो यीशु मसीह ने
मुकद्दस यूहन्ना के इंजील 17 बाब के अंदर इस दुआ को जो है पढ़ा है। और यहाँ पर लिखा है 3री आयत में, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हक को जानना यह हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जब तक हम हक को नहीं जानेंगे, हम इस भेद की बात को समझ नहीं पाएंगे। हक को जानेंगे तो ये मुकाशफात हमारे ऊपर खुलेंगे, खुदा का कलाम, खुदा के भेद हम पर आश्कारा होंगे। और यहाँ पर लिखा है हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आज यीशु मसीह को जानना जो है बड़ा जरूरी है, जानना जो है बड़ा जरूरी है। आज अगर हम किसी को ना जानते हो तो फिर क्या होता है? इसका मतलब कि हमारी वाकफियत नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। इसका मतलब है कि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, इसलिए तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। वाकफियत इसलिए नहीं थी कि वो यीशु मसीह को जान नहीं पाए। यीशु मसीह जब इस्राएल के अंदर आए, फकी फरीसी यहूदी यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए कि हकीकी बादशाह यही है, हक पर बात करने वाला यही मसीहा है जिसका हम इंतजार जो है वो कर रहे हैं। तो आज जब हम हक को जान जाते हैं ना, तो फिर आसमान के दरवाजे हमारे लिए जो है वो खुल जाते हैं। तो इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है हमेशा की जिंदगी ये है कि हम खुदावन यीशु मसीह को जो है वो जाने। जाने बगैर हमारी रफाकत नहीं हो सकती, जाने बगैर हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, जाने बगैर हम दिल की बात नहीं कर सकते, जाने बगैर हम अपनी मुनाजात, अपनी दरखास्तें पेश नहीं कर सकते। अगर हम जानेंगे तो फिर खुदा उनकी बरकत है। और यहां पर कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वो हक है, तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? राह मैं हूं, हक भी मैं हूं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम सही राह पर चल पड़े हैं, हमें हमारा हक मिल गया है, बात तक हमारी रसाई हो गई है, आसमान के दरवाजे हमारे लिए खुल गए हैं, किताब मुक़द्दस में हमारे नाम लिख दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि हम ठीक राह पर चल रहे हैं, हमें सही तालीम मिल रही है, हम सही तालीम को हासिल कर रहे हैं जो खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है। और फिर यीशु मसीह ने कहा जिंदगी मैं हूं, जिंदगी मैं हूं। और जिंदगी जो है यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। आज ये अगर हम देखते हैं, हमारी ये जिंदगी बड़ी आरजी जिंदगी है, लेकिन अपनी जिंदगी यीशु मसीह के वसीला से। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिंदगी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। इसका मतलब है कि जिंदगी को हासिल करना हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए हम देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 3रा बाब, और हम उसकी जो है 36 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर सदा गज़ब रहता है। आमीन। यहाँ पर लिखा है जो बेटे पर ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी किसकी है? जो बेटे पर क्या लाता है? ईमान लाता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, किसको नहीं देखेगा? जिंदगी को ना देखेगा। जो बेटे को नहीं मानता, जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। बेटे को मानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अब देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते, लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो है ये बयान करती है हमारा ईमान है, हमारा इत्तेकाद है। अब बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जब रूह यीशु को जंगल में ले गया
تاکہ آزمایا جائے. تو وہاں پر ابلیس جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے. اس کے منہ سے الفاظ نکلے. ابلیس جانتا ہے کہ واقعی یہ خدا کا بیٹا ہے. لکھا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے. یہ لفظ وہاں پر آیا ہے. اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ بیٹا ہے اور زندگی اسی کے وسیلہ سے ملنی ہے. پھر بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بے شمار معجزات کیے اور لکھا ہے بدروہیں تھرتھراتی اور کانپتی تھی. اور اکثر بدروہوں نے کہا ہے کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کہا. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہمیں عذاب میں ڈالے. بدروہیں جانتی ہیں, پہچانتی ہیں کہ یسوع مسیح جو وہ خدا کا بیٹا ہے. اور یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. یسوع مسیح کے بغیر نہ تو ہم صحیح راستے پر چل سکتے ہیں, نہ اپنے حق کو حاصل کر سکتے ہیں, نہ ہم ابدی زندگی کے وارث جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اور لکھا ہے جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے غضب کے نیچے ہیں, خدا کے قہر کے نیچے ہیں, کیونکہ وہ یسوع مسیح کو نہیں مانتے. آج ہر شخص نے اپنا معبود بنا رکھا ہے, اپنے طور طریقے اپنی روایات کے مطابق چلتے ہیں, لیکن سچ پر مبنی جو کلام ہے اس کے مطابق وہ نہیں چلتے. اور اگر ہم حق اور سچ کو جان جاتے ہیں تو پھر ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہمارے لیے جو وہ کھل جاتے ہیں. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا, راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ یسوع مسیح راستہ ہے جسے ہو کر ہمیں گزرنا ہے. یسوع مسیح وہ حق ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں ملنا ہے. یسوع مسیح وہ زندگی ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں ابدی زندگی جو وہ ملنی ہے. تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ راہ حق اور زندگی جو ہے وہ میں ہوں. آج اگر ہمارا ایمان اعتقاد اپنے خدا یسوع مسیح پر ہے اور ہم ٹھیک جگہ پر جا رہے ہیں تو پھر آسمان کی بادشاہی کے دروازے ہمارے لیے جو وہ کھل جاتے ہیں. اور یہ بات خدا یسوع مسیح نے فرمائی کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو آج میرے عزیزو ہم اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج دنیا کے اندر بے شمار جھوٹی تعلیمات مل رہی ہیں. ہم حق کو جان نہیں پا رہے, ہماری پہچان نہیں ہے. مقدس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو پرکھو کیا یہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بے شمار ایسے جھوٹے لوگ نکل کھڑے ہوئے جو اپنی غلط تعلیمات کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہم نے ایک حوالہ پڑھا ہے کہ وہ جو ہے سچائی کو چھوڑ کر حق کو چھوڑ کر وہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے بلعام کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دیا. آج بے شمار دنیا کے اندر ایسے پھاڑنے والے بھیڑی آئیں گے جو شاید لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے حق اور سچ کو جاننا ہے تو وہ خدا کا زندہ کلام ہے. اس کلام کے ذریعے ہم مسیح کو پہچان سکتے ہیں. اس کلام کے ذریعے جب اس کلام کو سنیں گے اپنے دل پر نقش کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی یسوع مسیح راہ ہے, یسوع مسیح حق ہے اور یسوع مسیح زندگی ہے. اور جب ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر ہماری زندگی جب وہ بابرکت جو ہے وہ ہو جائے گی. تو آج راہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, یسوع مسیح کے نام سے ہمیں ملتا ہے. اور لکھا ہے کہ باپ نے سارا اختیار کس کو دیا ہے؟ بیٹے کو دیا. عدالت کا اختیار بھی بیٹے کے پاس ہے. عدالت بھی بیٹے نے کرنی ہے, یسوع مسیح نے کرنی ہے. تو لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس کے اوپر خدا کا غضب رہتا ہے. ہمارے لیے یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے
कि हम हक और सच को जान गए हैं, यीशु मसीह को पहचान गए हैं कि यही हमारे लिए हकीकी रास्ता है और आसमान की बादशाही तक पहुंचने के लिए हमें यीशु मसीह के रास्ते से होकर गुजरना है। अब बाइबल मुकद्दस में देखते हैं 2 रास्ते बताए गए, एक रास्ता सुकड़ा है और एक क्या है कुशादा। और सुकड़े रास्ते में, तंग रास्ते में दाखिल होने वाले कितने हैं? थोड़े से हैं, लेकिन जो कुशादा रास्ता है उसमें से गुजरने वाले बेशुमार हैं, भीड़ की भीड़ लगी हुई है। अब तंग दरवाजे से कोई दाखिल नहीं हो रहा, जब इस दरवाजे से दाखिल होंगे तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। तो आज इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमें आज जो जरूरत है वो तालीम की है, बाइबल मुकद्दस की है। जब इस तालीम को हम लेंगे, इस कलाम को अपने दिलों पर नक्श कर लेंगे, तो फिर बीमारियां, कमजोरियां, रुकावटें खुद ही जाती रहेंगी। आज हम बाइबल के पीछे नहीं भागते, आज हम तालीम के लिए नहीं भागते, आज हम शिफा के लिए भागते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी भीड़ें हमें नजर आती हैं, लेकिन खुदा के कलाम को सिखाने वाले कम हैं। हम कोशिश करें इस बेदीनी के दौर में कलाम को अपने दिल में रख लें। जब कलाम आ जाएगा तो फिर सब कुछ आ जाएगा, खुदा की बरकतें, खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में ज़ाहिर हो जाएगा। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह सब कुछ है, इसके बगैर हम जो है कुछ नहीं है, हमारी लाइफ कुछ नहीं है। और हम इसी रास्ते से होकर हमने जो है आसमान तक जो है पहुंचना है और अपनी मिरास में शामिल होना है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि जहां पर मैं होगा वहां पर तुम भी होगे। ये हमें शरफ दिया गया, ये हमें ऑनर दिया गया है। इस रास्ते से होकर हमने जो है वो जाना है, और जब इस रास्ते से होकर हम जाएंगे तो खुदा की बरकत है। बाइबल मुकद्दस में एक हमें वाकया नजर आता है, एक बाइबल मुकद्दस में नबी के बारे में कि लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदा ने इसको पैगाम दिया, खुदा का पैगाम लेकर वो चला। खुदा ने उसको कहा था कि ना तूने वहां पर रोटी खानी है, ना पानी पीना है, और ना उस रास्ते से वापस आना है। अब ये खुदा का पैगाम उसको मिल गया है, अब वो चाहते हैं पैगाम लेकर और वहां पर पैगाम लेकर वापस आए। अब वहां पर एक और नबी है जो झूठा नबी है। उसको जब पता चलता है कि फलां नबी जो आया है कलाम लेकर, ना उसने रोटी खाई ना पानी पिया है, तो फौरन जो उसके पीछे वो भागता है और जाकर उसको कहता है कि मैं भी तेरी तरह का नबी हूं, मुझे खुदा ने कहा है तू मेरे साथ चल, रोटी खा, पानी पी, आराम कर, फिर अपनी राह ले लेना। उसने कहा नहीं, खुदा ने मुझे मना किया है। तो वो कहता नहीं, मैं भी तेरी तरह का नबी हूं, मुझे भी खुदा ने कहा कि उसको वापस घर ले आ। अब वो जब आता है, रोटी खाता है, पानी पीता है और खुदा के हुक्म को वो तोड़ देता है। और फिर जब रास्ते में जाता है, जंगल में से गुजरता है, तो वहां पर शेर जो है बाहर निकलता है जंगल से और नबी को जो है वो मार डालता है, हलाक कर देता है। क्यों हलाक हो गया? क्यों गजब आ गया? क्योंकि जिस राह से खुदा ने कहा था उस राह से वो नहीं आया, उसने नाफरमानी की। अब दूसरा नबी कहता है कि मैं भी तेरी तरह का नबी हूं। आज बेशुमार लोग आएंगे, वो कहेंगे असी पादरी हैं जी, साढ़े को भी खुदा का जिंदा कलाम। गुमराह करने वाले हमें हमारे रास्ते से, हमारे मौक़िफ़ से हटाने के लिए। और बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है, 2 नबी हैं, एक सच्चे, सच्चे को भी गुमराह कर दिया गया। आज बेशुमार लोग गुमराह करने के लिए जो है हमारे दाएं बाएं फिरते हैं, लेकिन जब हम तालीम पर अमल करेंगे, कलाम पर अमल करेंगे, सच्चाई को जानेंगे, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। और फिर हम जान जाएंगे कि यीशु मसीह राह है, यीशु मसीह हक है और यीशु मसीह जिंदगी है। तो इसलिए हमने जो है गुमराही की तासीरों से महफूज। जब आप कलाम को पढ़ेंगे ना, कलाम को सुनेंगे, चाहे आपके पास तालीम है या नहीं है, लेकिन जब कलाम को आप अपने अंदर नक्श कर लेंगे, आप दूसरों को बता सकेंगे कि हक और सच ये है, जो आप हमें बता रहे हैं ये नहीं है, कलाम हमें ये बताता है। क्योंकि आज बहुत सारी रवायात आ गई, बहुत सारे लोग बाइबल से हटकर जो है वो अपनी तशरीह पेश करते हैं, लेकिन जो कुछ कलाम में लिखा है इसके मुताबिक जब हम चलेंगे, अमल करेंगे, तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस जो है बन जाएंगे। इसलिए मेरे खुदा ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं। तो इसी रास्ते पर हमने चलना है
جب تک خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، کوشش کریں کہ یہ راہ جو یسوع نے ہمیں دکھائی ہے اور اسی کے مطابق چلیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے ہم وعدے جو ہے وہ بن جائیں۔